Good morning, all of you. This is Dr. Aisha Butalia, and I welcome you all for the second session of the series Software Engineering Project Management. And today we are going to discuss about the chapter 2, the process. The chapter 1 we discussed was about the software, and now we discuss about the process. In our previous session, I already briefed you about what is the importance of process, especially for a engineering student. Okay, why this is neglected by other computer graduates, maybe BCMC, and why this is more important for engineering. Okay, and the subject itself is software engineering project management. So engineering word is there. So process is the most important part in the engineering process. So let's discuss this in detail. In our previous lecture, it was in brief. Okay, but obviously this chapter 2 is a bit lengthy. So it won't be covered entirely in this session. We'll take a part of it. And let's see how much within a 20-minute span of time a subsequent topic is covered, because a lengthy lecture may also become after a certain period of time, it will be difficult for you to grasp. Before going to the topic, I will just recommend you that these PPTs you can easily get available from this website engppt.com. अगर आप गूगल पे सिर्फ इतना भी टाइप करोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रेसमैन पीपीटी डाउनलोड, ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रेसमैन इज द बुक ऑथर, ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है प्रेसमैन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. आप इतना भी अगर गूगल पे टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे. I prefer this link because it's a little bit more secure. The other links, they are more prone to virus. So यहाँ से आप chapter 1, chapter 2 ले सकते हो. So let's start. So what is basically, to understand process, you need to understand software engineering. और हमने पिछले lecture में ही देखा कि engineering के लिए process becomes more important. So what is software engineering? The application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of the software. That is application of engineering to a software. So पिछले lecture में we discussed about what is software and what is, if we apply systematic, disciplined, quantifiable approach. ये सब काय के लिए करना है? For the development, okay, to develop the software, for making the software operational, and for the maintenance of the software. Okay, so when we do all this with related to the software, that entire process is called software engineering. So I'll again repeat, the application of a systematic, okay, because software engineering is a systematic process. ठीक है, कोई project बनाना है, अगर आप systematic, disciplined, quantifiable approach से उसको develop करोगे, उसको ऑपरेट करोगे, उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करोगे, सो इट विल ऑलवेज बी अ हिट, इट विल ऑलवेज बी अ सक्सेस. तो अगर आपका कोई छोटा सा 1 डे का प्रोजेक्ट है, मे बी आप उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ना अप्लाई करो, लेकिन इंडस्ट्रीज में यू हैव गॉट अ पेड क्लाइंट्स, ओके, यू हैव गॉट कपल ऑफ मंथ्स ऑन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स, यू हैव कपल ऑफ इयर्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. तो इसीलिए अगर आप एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड वे नहीं अप्रोच यूज करोगे, after 5 years you will end up to disaster. If suppose 5 crore rupees are invested on that project and you come to know after 5 years that it's a disaster, don't you think that the company would collapse? So obviously the company to be a hit, the project to be a hit, the product to be a hit, you need to have a systematic, disciplined, quantifiable approach. And that is why software engineering is a very important topic, which is definitely ignored by developers, but it cannot be ignored by project managers, project leaders, the people who are interacting with the clients, jahan pe money involved hai, the people, the stakeholders. So for the stakeholders, for project managers, software engineering is a very, very important process. आप देखो कि जब भी कंपनीज में the highly paid people are not the developers, they are the project managers, because what they actually do,
they do software engineering, they design the analysis about the project. एक बार उन्होंने analysis और design कर लिया, वो डिसाइड करते कि कौन सा टूल यूज करना है, कौन सा लैंग्वेज यूज करना है, कैसे डिजाइन करना है, कितने क्लासेस बनेंगे, कैसे फंक्शनैलिटी होगी, बाद में वो ये सब डिजाइन कोडर को दे देते हैं. सो कोडर they just have to code it in a particular language, and that's why project managers are highly paid, because उनके ऊपर सारे प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर्स डिपेंड करता है. अगर प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, ये उसके डिजाइन पे मैटर करता है, और इसीलिए वो टास्क प्रोजेक्ट मैनेजर्स का होता है. और इसीलिए 5 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है, उसका डिजाइन फेल हुआ तो अकाउंटेबल कौन होगा? प्रोजेक्ट मैनेजर. इसलिए वो हाईली पेड एक्सपीरियंस्ड पीपल होते हैं. Okay, so that is why software engineering is important. So this is a very important diagram. आप जब भी कोई सर्टिफिकेशन करते हो, ये डायग्राम बहुत बार आपको दिखाया जाता है. So software engineering is nothing but it has layers. Okay, layers means part by part. Okay, तो सबसे पहले आप डिफाइन करोगे, अगर ऊपर से जा रहे हैं, ये सबसे ब्रॉडकास्ट है, तो क्वालिटी ऑब्वियसली आपको फोकस करना है. ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे कि प्रोसेस मॉडल डिफाइन करोगे. एक बार आपने प्रोसेस मॉडल डिफाइन किया तो उस मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या मेथड्स यूज करोगे, मींस द टेक्निकल हाउ टू डू इट, ऑल दैट. एंड देन फाइनली यू डिसाइड व्हाट आर द टूल्स यू आर गोइंग टू यूज टू implement those methods. Okay, so provide support for methods and processes. So tools are basically, they provide support, okay, for the methods you have designed. So methods are nothing but the algorithms. Tools are nothing but the softwares or the IDs you are going to use. Process model is something which is a package of your analysis and design. Obviously that we will see it in later, okay, in our upcoming lectures. And the basically the जहां से रूट है, ये नीचे का भाग है और ये रूट है कि क्वालिटी. तो आप ये सब जो इतना सारा जगलरी कर रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अल्टीमेटली ये क्या के लिए कर रहे हो? टू गेट एन ऑप्टिमाइज्ड कोड, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा. एंड ऑप्टिमाइज्ड कोड मींस एक क्वालिटी प्रोडक्ट. ओके, ऑब्वियसली अगर दो लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है, दोनों ने सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे प्रोजेक्ट बनाया है, तो किसका प्रोजेक्ट क्लाइंट लेगा? जिसका क्वालिटी ज्यादा अच्छा है. ओके, मार्केट में भी कई बार आप ISO सर्टिफिकेशन देखते हो, तो क्वालिटी डज मैटर. ओके, अगर आप बोलते हो कि दिस इज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, व्हाई इट्स कॉल्ड अ ब्रांड? बिकॉज उसकी क्वालिटी टेस्ट की गई है. पहले के जमाने में ISI मार्क हुआ करते थे. जिस प्रोडक्ट को ISI मार्क है, तो वो लोग बिना आंख बंद करके उसको लेकर से विश्वास करते थे, ट्रस्ट करते थे. व्हाट वाज द रीजन? कि अगर वो ISI सर्टिफाइड है, इसका मतलब है कि दैट प्रोडक्ट हैज बीन टेस्टेड, इट्स क्वालिटी हैज बीन टेस्टेड, एंड हम उसको बिंदास यूज कर सकते हैं. सो अवर रूट थिंग ऑफ एनी software engineering is the quality. So you need to focus on the quality of your product. तो उस तरीके से आपको उसको डिजाइन करना है. So this is the layered technology. Very easy. See, बहुत सारे लोग इन वर्ड से बहुत घबरा जाते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्चुअली इज इंट्रोडक्शन टू द न्यू टर्मिनोलॉजी, टू द न्यू वर्ड्स. लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में इसकी डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे एंड जस्ट रिलेट टू योर कंप्यूटर फील्ड, it is very simple. So software engineering subject becomes very, very simple. The only thing is you should need to understand these things in your day-to-day life, these new words, these new dictionary words. Okay, and these dictionary words are more related to your computer language. Okay, so that is why just you need to understand these new words, new terminologies, understand their definition, and try to incorporate in a small mini project which you can use in your day-to-day life. That's it. As simple is going to be this subject. So types of software maintenance. So there are 4 types: corrective, adaptive, perfective, and preventive. Okay. So as the name suggests, corrective means you have written a program, you've written a software, to take corrective measures. Adaptive, आप अपने सॉफ्टवेयर को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अगर रन करने की अडेप्टिवनेस रख सकते हो. फॉर एग्जांपल इफ यू यूज जावा,
So Java has an inbuilt virtual machine. Why Java has become very popular? Because it has got a virtual machine which interprets different operating system. आपका जो कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर बाइनरी कोड में. So that class file is nothing but a byte code which uses an interpreter, and that interpreter works on any platform. तो आपको इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट. तो आप कर क्या रहे हो? इफ यू आर यूजिंग, अगर आप एक सी प्रोग्राम को जावा में कन्वर्ट कर रहे हो आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को, सो यू आर मेकिंग योर project more adaptive to the operating system. So this adaptive is a very common terminology. वो डिपेंड करता है कि आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट बनाना चाहते हो, या आप उसको लैंग्वेज डिपेंडेंट बनाना चाहते हो, या आप उसको मेमोरी डिपेंडेंट, किस टाइप का अडेप्टेबिलिटी फीचर आप अपने प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हो. तो वो मेंटेनेंस में भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने 10 साल पहले सी में बनाया था, तब जावा नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, आज आपको मेंटेनेंस में आपका क्लाइंट बोलेगा कि इन मेंटेनेंस आई वांट द प्रीवियस प्रोजेक्ट इन सी लैंग्वेज जो आपने मुझे हैंड ओवर किया था वो मुझे अब जावा में चाहिए. व्हाई? बिकॉज आई वांट टू अपलोड इट ऑन द डब्ल्यू. शायद आज के डेट में जावा भी एक आउटडेटेड ही है, वो ऑलरेडी हुआ ही होगा. सामने वाला बोलेगा आई वांट इट इन ओपन सोर्स, आई वांट इट ऑन द क्लाउड, आई डोंट वांट टू डाउनलोड. सो दीज ऑल थिंग मेंटेनेंस में आपको अडेप्टिव में आपका क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट कर सकता है. मे बी उस समय वो जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया था क्लाइंट ने was more of a specific problem statement. Now the client wants in a maintenance कि आप उसको perfect बनाओ, उसमें और features डालो. पहले के जमाने में, so for example, आपका emotion detection software है, तो उस समय अगर आपको क्लाइंट ने बोला था कि you can use facial expression for emotion detection. Maybe today the client wants in maintenance, of course maintenance charges are there. Client will say that you make my product more perfect by adding audio emotions, by adding gate emotions, whatever. So that the client wants his product to become more perfect. So that also can come under software maintenance. Of course maintenance में पैसा लगता है. For example, अगर आपने AC खरीदा है, मे बी आफ्टर अ ईयर आपको एसी को क्लीन करवाना है, तो आप बंदे को बुलाते हो, एसी क्लीन करवाते हो. तो इट्स नॉट, मे बी अगर वो एक पर्टिकुलर टेन्योर में होगा तो यू गेट सम 2 to 3 मेंटेनेंस फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर आप कोई कार भी लेते हो तो आपको उसका सर्विसिंग आपको 2 से 3 फ्री में मिलता है, लेकिन उसके बाद में इट गोस पेड. ओके, सो दीज टाइप्स इट डिपेंड कि आपके मेंटेनेंस में आपने क्लाइंट के साथ क्या डील किया है, कितने टाइम तक आप उनको मेंटेनेंस देंगे, कितने चीजें आप मेंटेनेंस में देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, चार्ज करेंगे, एंड सो फोर्थ. सो ऑब्वियसली अगर आपका प्रोजेक्ट फेशियल एक्सप्रेशन पे रिकॉग्निशन था इमोशन का, अगर आपको 1 साल बाद क्लाइंट बोलता है वांटेड बाय ऑडियो, I would say that it won't be free of cost. Okay, that maintenance will definitely charge because you are adding another feature to make it more perfect. And last but not the least, preventive. So कुछ टाइम बाद क्लाइंट को पता चलता है कि देयर नीड टू बी टेकन सम प्रिवेंटिव मेजर्स सो दैट उनको कुछ बग्स ना आए उनके प्रोडक्ट के डिलीवरी के टाइम पे, which client is going to give to their clients actually. So it may add, maybe the client realizes after due course. So obviously preventive type के भी maintenance the client could request you to. So these are the different types of software maintenance. आप इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू या अगर आप जो मिनी प्रोजेक्ट करोगे उसमें आप क्वेश्चन पेपर पे आप इसको इलैबोरेट करके सॉल्व कर सकते हो. कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क. सो फ्रेमवर्क इज नथिंग, एक ढांचा होता है, ठीक है. सो कोई भी प्रोसेस का एक फ्रेमवर्क होता है. फ्रेमवर्क मतलब एक डिफाइंड सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है. तो फ्रेमवर्क एक कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क, ये हमारा आउटर विजन हो गया. उस आउटर विजन में हमारे पास एक्टिविटीज होंगी. ऑफ कोर्स कोई एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हम लोग टास्क सेट्स करेंगे. सेट मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ से एक डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है, अब उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको 4 फ्लाइट्स बदलने पड़ेंगे. तो आपका प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या है कि आपको उस डेस्टिनेशन पे जाना है. एक्टिविटीज क्या है कि आपको 4 फ्लाइट्स बदलने पड़ेंगे. टास्क सेट क्या होंगे कि हर फ्लाइट बदलने के लिए आपको बोर्डिंग करना पड़ेगा, लगेज अनबोर्डिंग करना पड़ेगा. तो आपके कुछ टास्क सेट्स होंगे हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. और उस टास्क सेट्स में होंगे क्या कि हर सेट में आप ये बताओगे कि क्या क्या टास्क आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे. माइलस्टोन,
माइलस्टोन मतलब वो टाइम बाउंड होगा कि इतने तक आपको ये माइलस्टोन अचीव करना है, डिलीवरेबल्स करना है। तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी का जो हमने प्रीवियस लेक्चर में लिया था कि माइलस्टोन मीन इट शुड बी स्केलेबल, वो टास्क स्केलेबल होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए, वो डिलीवरेबल होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स चेक पॉइंट, चेक पॉइंट इसलिए कि आप चेक करते रहोगे कि क्या मैं डिले तो नहीं हो रहा हूं, क्या ये मेरा टास्क डिले तो नहीं हो रहा है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज विल कम अंडर योर फ्रेमवर्क एक्टिविटीज एंड टास्क सेट्स, ओके। और अल्टीमेटली प्रोसेस फ्रेमवर्क में फ्रेमवर्क एक्टिविटीज के साथ साथ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब कि जो कुछ मिसलिनियस एक्टिविटीज होती है जो हमें रन टाइम पे समझ में आती है, जो हम लोग उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो कुछ टाइम फ्रेम हमें मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिए रखने पड़ते हैं, उसको अम्ब्रेला एक्टिविटी बोलते हैं। सो अल्टीमेटली जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क, सो यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड यू नीड टू define कि a process common framework comprises of activities divided into task sets divided into task, milestones means एक achievable आउटकम, एंड चेक पॉइंट मतलब हम चेक करते रहेंगे कि वेदर उसका क्वालिटी, SQA मीन्स सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। जैसे मैंने कहा कि 5 साल बाद अगर आप किसी प्रोडक्ट का टेस्टिंग करोगे, यू मे टर्न इनटू डिजास्टर, तो आपको उसका पीरियोडिकली चेक करना है। जैसे पिछले लेक्चर में आई डिस्कस की स्टूडेंट्स का हम लोग कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करते हैं, सो दैट कम्स अंडर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस चेक पॉइंट्स मींस कंटिन्यूस पीरियोडिकली, ओके। एक लास्ट फाइनल नहीं होगा, चेक पॉइंट मतलब बीच बीच में पॉइंट वाइज आप उसकी चेकिंग करते रहोगे। एंड देन द अम्ब्रेला एक्टिविटीज विच आर द मिसलेनियस। सो अम्ब्रेला एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं? यू हैव गॉट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट इज ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो एक ट्रैकिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि मैन्युअली ट्रैक करना कई बार फीजिबल नहीं होता है, एंड नाउअडेज देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल्स अवेलेबल। तो आप अगर ट्रैकिंग एंड कंट्रोल के लिए कोई स्पेसिफिक टूल डाउनलोड कर रहे हो, that you can do that, but ultimately that comes under umbrella activities, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो you cannot ignore that in your process framework, okay। umbrella activities कई बार लोग बहुत इसको डाउनग्रेड करते हैं, but it needs to be taken care of। so the next task under umbrella activities formal technical reviews, तो बीच बीच में आप फीडबैक लोगे, रिव्यूज मीन्स फीडबैक लेना, ओके। सो फॉर्मली आपको टेक्निकल लेना पड़ेगा। आप आपके कंपनी में ही आप अपने ही कुछ टीम को अप्रोच कर सकते हो, तो दैट्स कॉल्ड एज इंटरनल क्वालिटी टेस्टिंग। और आप साथ ही साथ पीरियोडिकली आप अपने क्लाइंट से भी टेस्टिंग रिव्यूज ले सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज क्लाइंट टेस्टिंग, ओके। तो इंटरनल टेस्टिंग एंड एक्सटर्नल टेस्टिंग, बट इट शुड बी डन नॉट इनफॉर्मली, फॉर्मली, क्योंकि फॉर्मली में सामने वाला आपको सीरियसली आपकी टेस्टिंग करेगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन में देगा। तो कल को आपको अगर अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बोलना है कि सी मैंने तो टेक्निकल रिव्यूज दिए थे, तब क्लाइंट की तरफ से हमें कोई भी फीडबैक नहीं आया था, हाउ कैन यू ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 years? तो इसीलिए ये टेक्निकल रिव्यूज ऑफिशियली आपको लेने चाहिए और उसका डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए फॉर योर ओन सेफ साइड, एंड ऑल्सो फॉर द क्लाइंट टू टेक इट सीरियसली, क्योंकि कई बार क्लाइंट भी जब रिव्यू देना होता है तो वो अपने आप को बिजी दिखाता है, एंड बाद में ही क्रिएट्स एन इश्यू, सो दैट इश्यू शुड नॉट कम। थर्डली सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, वो तो आपको करना ही है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट, आपको कॉन्फ़िगर बीच बीच में मैनेज करके देखना ही है। यू हैव टू डिप्लॉय योर मॉड्यूल्स पीरियोडिकली, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट बनाने के बाद लास्ट में डिप्लॉय करना है, क्योंकि अगर उस समय आपको पता चला कि दीज डिप्लॉयमेंट टूल्स डू नॉट वर्क, आपको शायद डिजाइन में भी चेंजेस करने पड़े और फिर आपको पूरा बैक ट्रैक करना पड़ेगा 5 साल पहले का, नॉट पॉसिबल। सो यू नीड टू डू पीरियोडिकली कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट, okay, that should be a part of process framework और एक्टिविटीज ही होती रहनी चाहिए। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन प्रोडक्शन, ये भी आपका पीरियोडिकली होना चाहिए। आप पूरे 5 साल बाद अपना प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंटेशन नहीं करोगे, क्योंकि आपको खुद को याद नहीं रहेगा कि आपने 5 साल पहले किया क्या था। प्लस लोग आपके आते जाते रहेंगे, द एम्प्लॉयज विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन, न्यू एम्प्लॉयज विल ज्वाइन, तो ऑब्वियसली पीछे का डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, तो आगे के जो एम्प्लॉयज ज्वाइन करेंगे वो आपका वो डॉक्यूमेंटेशन स्टडी करेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को छोड़ते वक्त बोलोगे कि डॉक्यूमेंटेशन करो,
तो वो आपके लिए अच्छे से नहीं करेगा. तो प्रोजेक्ट मैनेजर शुड टेक केयर. Okay, these software engineering, all umbrella activities are the part of project manager. तो प्रोजेक्ट मैनेजर पीरियोडिकली आपसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करा के लेते रहेगा, या तो वो खुद प्रिपेयर करते रहेगा क्योंकि उसके ऊपर भी कोई बॉस है, उसको रिपोर्ट करना है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है वो पीरियोडिकली चल रही है. ओके. रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट. आपको कभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर बहुत अच्छा प्रोसेस मॉडल डिफाइन करना है तो रीयूजेबिलिटी होनी ही चाहिए. एज अ प्रोग्रामर आप अगर ऑलरेडी सी या जावा प्रोग्रामिंग सीख चुके हो, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख चुके हो, तो आप सबको मालूम है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग. मॉड्यूलैरिटी, रीयूजेबिलिटी. सिमिलरली व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? रीयूजेबिलिटी. तो ऑब्वियसली ये फीचर्स आपको मैनेज करने ही पड़ेंगे. सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अम्ब्रेला एक्टिविटीज. मेजरमेंट. आपको पीरियोडिकली मेजर करते ही रहना है आपको प्रोजेक्ट को. मैंने आपको स्मार्ट टेक्निक्स बताए थे पिछले लेक्चर में. S is for scalable, M is for measurement. So your project measurement needs to be done periodically. Obviously हम ये जो टॉपिक है प्रोजेक्ट मैट्रिक्स, जिसमें आपके प्रोजेक्ट को कैसे मेजर करना है, ये हम अलग से लेक्चर लेने वाले हैं इन डिटेल. So you can just skip this point right now, okay, for your understanding. Last but not the least, risk management. रिस्क मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ेगा. अगर आपका मेमोरी डिलीट हो गया, आपका डेटा डिलीट हो गया, आपका प्रोजेक्ट क्रैश हो गया, क्या आप क्लाइंट को ये बोलोगे कि मेरा आज, जैसे आप लोग कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं इंटरनेट चला गया, ये चला गया. दीज ऑल थिंग्स यू कैन नॉट डिफाइन टू योर क्लाइंट बिकॉज ही इज पेइंग फॉर यू. तो you have to take it very seriously. तो रिस्क मैनेजमेंट ये आपको करना है. आपको बैकअप्स लेके रखने पड़ेंगे, आपको कोड के बैकअप्स लेने पड़ेंगे, डेटा का बैकअप लेना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन का बैकअप लेना पड़ेगा. यू हैव टू हैंडल रिस्क मैनेजमेंट. ऑफ कोर्स देयर इज अनदर चैप्टर in our subject for this risk management, so we are going to take that again more into detail. So before going to the next topic, that is process model adaptability, okay, let's revise and stop here for the day for this particular session. So we covered what is software engineering, okay, how to upgrade your software as per software engineering, what are the layered technology, that means what are the parts of software engineering. If you say that you have to quality check, so you need to go all this process. Of course the quality is the major role. उसके बाद में उससे कम इम्पोर्टेंस प्रोसेस, उससे कम इम्पोर्टेंट मेथड्स, उससे कम इम्पोर्टेंस टूल्स. तो जो डेवलपर्स होते हैं वो टूल्स पे काम करते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो इन तीन चीजों पे फोकस करते हैं. तो ऑब्वियसली डेवलपर्स आर लेस पेड क्योंकि उनका इंपॉर्टेंस भी देखिए यहाँ पे कम दिख रहा है, ये चीजों का ज्यादा है, इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर पेड मोर. Okay, then we discussed about the types of software maintenance in detail, and obviously about the common process framework, where we discussed about the umbrella activities in detail. So I would like to stop here for this topic, and maybe the continuation of this lecture where we would try to understand what is process model adaptability, the SEI CMM levels, the process for problem solving, and the different types of models, which involves linear model, waterfall model, prototyping, RAD, that's rapid application development, incremental model, spiral model, evolutionary model, okay, and the other process models. So stay tuned for that lecture and session, and I will be giving you the website for which you can download this PPT in the description box, the previous lecture link, and upcoming lectures, obviously you can get it from the channel. So thank you very much for your patience listening. This is Dr. Aisha Butalia signing off for this session 2 of Software Engineering Project Management. Thank you very much. Have a nice day.